आज नवंबर 3, 2020 में हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की हमें फोकल लेंथ निकालनी है बट ग्राफिकली। सो हमारा जो टेक्निक रहेगा एक्चुअली we'll just take a convex lens. First we will find इसकी rough या approximate focal length. That approximate focal length कैसे निकलेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी लैब बेंच पे how it is done. Already मैंने एक बार दिखाया हुआ है, फिर से मैं दिखाऊंगा. So इसकी rough focal length हमने निकाली. So मान लो ये this is the focus and this is 2f point on this side, ऐसे ही यहाँ से focus and 2f point on this side. So we are going to place an object somewhere approximate focal length और जो center of sorry 2 times the focal length है उसके बीच में हम कहीं पे object रखेंगे so that we'll get a real magnified image on the other side. You know, if you place an object at the focus, say यहाँ पे आपने object रखा, then naturally the image is going to be on the other side at infinity. It's going to form at infinity. Okay, very enlarged होगी, say infinity पे image होगी. Then if you move it, say towards the 2f point, तो यहाँ पे मान लो आपने बीच में कहीं पे रखा, say 2f पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी जो इमेज है एनलार्ज्ड इमेज समवेयर अराउंड 3f के यहाँ पे होगी, ठीक है, मैग्नीफाइड होगी, 3f होगी. और फिर हम और आगे पीछे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, से मे बी वी हैव प्लेस्ड इट समवेयर नियर 2f एट एग्जैक्टली 2f अगर हम रखें तो ये आप देखोगे 2f पे ही इमेज बनेगी. ओके और वो सेम साइज की होगी और इन्वर्टेड होगी. फिर जब आप पीछे ले जाते हो ऑब्जेक्ट को से बियॉन्ड 2f मे बी एट इन्फिनिटी देन द इमेज इज फॉर्म्ड, छोटी इमेज बनती है एट द फोकस. सो इफ वी प्लॉट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऑन अ ग्राफ, से यहाँ से आप u वर्सेस v प्लॉट करेंगे. And if you use a Cartesian sign convention, this side is because this is the incident direction, इसके opposite आप measure करोगे सारी distances from the center of the lens, वहाँ से आप measure करोगे तो this would be a negative value. So object distances negative होंगी, that means this side, and images, real images on the opposite side बनेंगी, यानी कि positive side से, तो real image positive होंगी. So this portion deals with real object and real image. So अगर आप graphically देखोगे, roughly हमें पता है the graph किस type का, how it look like. Suppose this is the this focus here, say minus f, focal length यहाँ तक minus f है, then you have minus 2f, then you have minus 3f, and so on. It goes up to infinity. And on this side we can also plot, say this is the f, this would be say plus 2f and so on 3f, and kind of ऐसे ही extend होगा up to infinity. You know, if you place an object at the focus, the image is going to, at the focus on this side, the image is going to form at infinity. So somewhere, मान लो if you place somewhere at infinity here, goes up. If you place an object somewhere between say f and 2f, that this would be f and 2f somewhere here, then its image is going to be at 3f. It's exactly between f and 2f, then its image is going to be at 3f, kind of here ये point होगा. Then अगर आप 2f पे रखोगे तो 2f पे होगा, तो ये वाला point होगा ऐसे, 2f पे 2f होगा. And अगर आप रखोगे between f and 2f, it would be at 3f somewhere here ऐसे. And this focus पे अगर आप अगर आप infinity पे object रखोगे तो image will be at the focus. So infinity आप ऐसे ले लो. This is an asymptotic line passing through the focus. This is the line passing through the focus ऐसे. So this is the kind of graph you would expect. ऐसा graph आपको मिलना चाहिए. It's a rectangular hyperbola, which of course we can see from the equation. You know, the
lens formula is 1 by v minus 1 by u. So this is a hyperbolic equation. So this kind of a graph हमें मिलेगा. अब actually हमें ऐसे तो नहीं करना. We don't have to take known points because we don't know f or we don't know 2f. ये तो हमने approximate देखा था. तो practically हमें क्या करना है? We'll place objects at various distances. So we will know u, we will know v, and then plot u and v, and you will get a graph, a smooth graph. आप join करो, a hyperbolic graph. Then what you do is you just take, you just draw a line at 45 degrees ऐसे. So clearly 45 degrees पे जो x coordinate होगा वही y coordinate होगा. So जहाँ पे ये intercept करेगी ये line, 45 degree वाली line, अगर आप देखोगे intercept जहाँ पे करेगी, then this must be your 2f point. Okay? और इस side से भी आप निकाल सकते हो, this must be your 2f point. इसी का half, इसी point का half. You are not given these points here. Okay? You're not given these points. You're actually plotting u versus v. And then you, जब आप graph smoothly draw करोगे, उसके बाद आप 45 degrees पे line डालोगे. So then you draw perpendiculars on this line and this line. Then you find ये वाली जो distance है, say OA distance का half, that would give us the focal length. So you could find the focal length OA by half, the magnitude of OA divided by 2. Or you could also find the focal length यहाँ से भी, because this is also 2f. So this is OB. You could find the focal length OB by 2. Of course, these two will be equal if it's a 45 degree line. Okay. So ये तो हुआ, this is what we are going to do. So first we'll find the approximate focal length of a convex lens. And of course, we'll look for index corrections in u and v as well. And then take the observed values of u and v, then correct it. जो हमने देखा index correction करनी पड़ती है optical bench पे, तो हम corrected u and v values हमें मिलेंगे. इसी u और v को हमें plot करना है on a graph. And the graph would look like this. Okay. There is another graph जो हम कर सकते हैं, that is called 1 by u, 1 by v graph. If you plot 1 by v versus 1 by u graph, so 1 by v would be, according to lens formula, 1 by v would be 1 by u plus 1 by f. Now if you consider this as the y-axis, this is along the, if you plot 1 by u along the x, there is a slope 1 here, plus then this y-intercept will be equal to 1 by f. So if you plot ऐसे graph अगर आप plot करोगे, यहाँ से आप 1 by u plot करोगे और यहाँ से 1 by v. So according to this equation, अगर आप देखोगे, this is the equation of a straight line with a slope 1. Slope 1 means slope जो है, that's equal to 1. That means tan theta equal to 1, which implies that theta is equal to 45 degrees. So you will get a 45 degree line. Okay. Theoretically, हमें पता लग रहा है, you will get a 45 degree line, straight line. So by the way, अगर अब हम 1 by u plot करेंगे जो negative values होंगे, and 1 by v plot करेंगे जो positive values होंगे, you would get something like a set of points like this. Okay. And they should lie along a line. और वो line आपने draw करनी है. So you have to draw that line. Two things you have to check. You will check that इसकी जो slope है, जो इसकी slope होगी, that means ये 45 degrees angle पे होगी. And जो जहाँ पे ये line काटेगी this y-axis को, that would be your y-intercept. So इस वाले graph को अगर हमें use करना है, we'll just plot these points, join by a line, find out the y-intercept. Once we know the y-intercept, we know y-intercept is 1 by f. Magnitude of y-intercept is 1 by f. So f can be easily found out by 1 by c. So this is the other technique, the other graph जिससे हम focal length निकाल सकते हैं of a convex lens. Let us now take readings. So ये हमारा experimental setup होगा. We want to determine the focal length of this lens, the convex lens. Okay. कैसे करना है? We have to of course find u or v
हमें निकलेगा प्रैक्टिकली, एंड देन प्लॉट द ग्राफ, एंड देन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. So I can place a convex lens. This could be your object. So this is the object needle, and this would be the image needle. Okay. So इसके लिए हमें correction करनी पड़ेगी पहले, and इसके लिए भी हमें correction करनी पड़ेगी. Now we may because lens दोनों side से these are conjugate. अगर हमने ये object है तो ये इसकी image है, तो this could, if we consider this as an object, तो ये बन जाएगी image. These are conjugate points. So you know that the objects can be replaced by image, and image can be replaced by an object in case of a biconvex lens. दोनों साइड से एक जैसा होता है. तो इस लिहाज से कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं. In order to take many readings, we'll take this as the object distance and this as the image distance, है ना. या तो हम इसको as object distance consider कर सकते हैं, and इसको as image distance. But before all of this, first we need to find out इसकी rough focal length. और वो आपको पता है, just take this lens, hold it near some screen, and try to form a distant image of a distant object on the screen. Okay, जहाँ पे वो form हो जाएगी, उसकी जो length to the screen होगी lens की, that would be the focal length. Let me do it now. Okay, this wall I will consider as the screen. This is the lens. I'll keep it on a ruler and try to form an object of a distant image. वो है कोठी बाग की lab की windows. Okay, you can see windows. देखो यहाँ नहीं थी windows. अब मैं आगे lens को चला रहा हूँ, तो आप देखो windows बन रही हैं यहाँ पे. So I'm looking for a very sharp image. ठीक है. So this is somewhere. यहाँ पे मेरी काफ़ी sharp image आ गई. Somewhere here. So you can check how much is this distance. यहाँ पे मैंने लेंस को रखा है. This is 15 centimeters. Okay. So the focal length of this convex lens is roughly 15 centimeters. Okay. So यहाँ पे मैंने लेंस को अरेंज कर दिया इसमें, एंड आप देखिए ये मैंने 30 मार्क पे रखा हुआ है लेंस. तो 15 पे यहाँ पे एट मार्क 15 यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट फोकस होगा, एंड ये जो मार्क 0 है यहाँ पे 2f पॉइंट होगा, है ना. सो टोटल 2f इज डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेंस, राइट. So I'll be placing an object between the this mark, the f mark and 2f mark. Okay, sorry, I will be placing the object वहीं पे. So let me take the object. Object pin यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है. So between this and this, so that I'll get an image beyond 2f, and between 2f, 3f, kind of ऐसे ही. So before we do that, first we need to check for index correction. Okay, जैसे हमें करना पड़ता है index correction के लिए, you will take the length, you will measure the length of some standard object like this knitting needle. इसको तो हमने कई experiments में use किया, and the length is 22.8 centimeters. So हाँ, by the way, approximate focal length हमें मिली थी 15 centimeters. So this is 22.8 centimeters. So if I place this needle here, lens और इसकी टिप में, तो आप देखो ये बिल्कुल मैच कर रहा है. So this must be यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 22.8 सेंटीमीटर्स है. बट क्या वो इंडेक्स मार्क्स भी वही डिस्टेंस दिखा रहे हैं? अगर नहीं तो हमें क्या एक्चुअल करेक्शन करनी पड़ेगी. तो इंडेक्स मार्क्स को अगर मैं इंडेक्स मार्क्स के बीच में रखूं रूलर, एंड इट्स शोइंग मी 22.6. ओके, तो इंडेक्स करेक्शन के लिए मुझे असली डिस्टेंस कितनी है? 22.8, एंड दिस इज शोइंग 22.6. तो ये कम दिखा रहा है. सो आई नीड टू ऐड. ओके, सो कितना ऐड करना है? तो इंडेक्स करेक्शन होगी +0.2 सेंटीमीटर्स ऐड करना है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इंडेक्स करेक्शन करूँ इस वाले के लिए, देखते हैं. सो ये नीटिंग नीडल अगर हम इसके साथ रखें, अब देखो इसके और इसको हम मैच कर रहे हैं, परफेक्ट हो रहा है ये.
tip to tip. So this distance must be यहाँ से यहाँ तक 22.8 centimeters. But what are the index marks showing? So कहाँ पे हैं ये? यहाँ पे रखेंगे हम index mark इसका, और इसका index mark दिखा रहा है. This is oh my god, this is, ये तो बहुत ज़्यादा distance दिखा रहा है. यहाँ पे कितनी दिखा रहा है? 23.8. This is 23.8 centimeters दिखा रहा है. तो 22 असली डिस्टेंस तो 22.8 है, तो 23 so that means ये ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन असली में कम है. ठीक है, तो हमें जो रीडिंग इससे लेंगे, इस नीडल, उसमें से हमें 1 सेंटीमीटर कम करना है. सो -1.0 सेंटीमीटर इसके लिए इंडेक्स करेक्शन होगी, इस वाली साइड के लिए. ओके, तो लेट अस नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन F, ये हमने फिक्स करके रखा हुआ है, बिटवीन F एंड 2F कहीं पे भी रख देंगे ऑब्जेक्ट, और देन विल सी ऑन द अदर साइड द इमेज. ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड एन इन्वर्टेड इमेज कहीं पे, एंड देन फिर उसको लोकेट करेंगे. सो इफ़ यू लुक एट दिस, ये देखो आपको इन्वर्टेड इमेज दिख रही है नीडल की. जस्ट अ मिनट. हाँ, बहुत मोटी अच्छी खासी इमेज दिख रही है, इन्वर्टेड इमेज इनसाइड है नीडल. पता नहीं दिख रही है कि नहीं आपको. सो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज दिख रही है हमें, तो इसको लोकेट करने के लिए प्लेस अ इमेज पिन. ठीक है, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट अ पोजीशन जहाँ पे पैरेलैक्स नहीं हो. ठीक है, आई विल डू दैट. सो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द करेक्ट पोजीशन. आप चेक कीजिए इस वाली नीडल को और वो जो इमेज दिख रही है, इनके जो टिप्स हैं ना वो मैच कर रहे हैं. एंड अगर मैं अपने हेड को स्वे कर रहा हूँ तो ये टिप्स भी साथ साथ चल रहे हैं. ओके, तो दैट मीन्स दिस इज द इमेज पोजीशन. अब मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट मेजर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस, एंड ऑफ कोर्स करेक्शंस करके देन आई विल राइट फर्स्ट रीडिंग. सो ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे निकल रही है 25 सेंटीमीटर्स, एंड ऑब्जर्व्ड इमेज डिस्टेंस मुझे निकल रही है 43.1 सेंटीमीटर्स. सो ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहली रीडिंग के लिए इज 25 centimeters, and observed image distance is 43.1 centimeter. So I need to correct this. तो corrected क्या आ जाएगा, मुझे 0.2 ऐड करना है U के लिए. So ये बनेगा 25.2 centimeters, और 1 सेंटीमीटर कम करना है इसमें से V के लिए, यानी कि 42.1 सेंटीमीटर. ओके, फिर मैं इसका इन्वर्स भी निकाल सकता हूँ कैलकुलेटर पे. ओके, सेकंड रीडिंग के लिए मैं इसको पीछे चलाऊंगा थोड़ा सा. ओके, सो ये मूव करेगा आगे की तरफ ताकि हमें ये रीडिंग मिले. बाय द वे, आई कैन टेक अनदर रीडिंग. जो मैंने ये अभी ये ली नहीं, इससे पहले जो रीडिंग ली, इसमें अगर मैं फ्लिप करूं, दिस वुड बी माय अदर रीडिंग. लाइक इफ आई कंसिडर्ड 20 दिस एज द ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस क्या थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती फिर 43 दिस वन. ओके, तो मे बी दिस इज द 6th रीडिंग. चलो, ओके, 6th रीडिंग यहाँ पे. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 43.1 ले लूँ, एंड इमेज डिस्टेंस क्या बनेगी, इमेज डिस्टेंस बनेगी 25 सेंटीमीटर्स. ओके, एंड फिर मुझे इसमें करेक्ट करना है 43 में. ना इस वाली पिन के लिए करेक्शन क्या है, 42. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करेक्टेड आ जाएगी 42.1 सेंटीमीटर्स एंड 25.2 सेंटीमीटर्स. राइट. सो अब देखो, एक रीडिंग करके मैं, एक सेटअप करके मैं 2 रीडिंग निकाल सकता हूँ. आई कैन कंसिडर दिस एज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज, and or I can consider this as the object and this is the image. चलो, अब सेकंड रीडिंग के लिए मैंने इसको थोड़ा पीछे हटाया, and let me adjust it so that I'll find कहाँ पे properly image होगी.
तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यू कैन चेक दिस इस तरीके से. सी दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नीडल भी दिख रही है आपको ये वाली, एंड इधर इमेज नीडल. इफ आई स्वे माई हेड, आप देखो दोनों टिप्स इकट्ठे मूव हो रही हैं, है ना. तो दैट मीन्स देयर इज नो पैरालैक्स. तो रीडिंग लेते हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखा रहा है 28, जस्ट अ मिनट, 28.8 एंड इमेज डिस्टेंस दिखा रहा है, इफ आई सेट इट हेयर एंड प्लेस इट हेयर, इमेज डिस्टेंस आ रही है हमें एग्जैक्टली 36 सेंटीमीटर्स. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 28.8 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 36 सेंटीमीटर्स. तो इसे करेक्ट करना है, 0.2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 29 सेंटीमीटर्स. इसको करेक्ट करना है, 1 माइनस करना है इसमें से, सो ये बनेगा 35 सेंटीमीटर्स. ठीक है. एंड एक और रीडिंग आप ले सकते हो इसका उल्टा, बिकॉज यू कैन कंसिडर दिस एज द ऑब्जेक्ट एंड दिस एज द इमेज, तो ये फ्लिप हो जाएगा. ये वाली हम 5th वाली रीडिंग लेंगे यहाँ पे. सो दिस वुड बी 36 सेंटीमीटर्स, दिस इज 28.8, तो इसमें भी फ्लिप हो जाएगा 35 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 29 सेंटीमीटर्स, राइट. सो अब हम एक रीडिंग लेते हैं, उससे हम 2 रीडिंग्स बनाएंगे. कैसे? अब हम इसको और मूव करेंगे, मे बी विल मूव इट स्लाइटली मोर बैकवर्ड्स यहाँ पे, एंड लेट अस सी हमें इसको कितना आगे चलाना पड़ेगा. तो अब देखिए यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया है, तो ये टिप्स दोनों कोइंसाइड हो रही हैं एंड देयर इज नो पैरालैक्स. ओके, सो लेट अस टेक द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम देखेंगे पहले, इसको यहाँ पे 0 प्लेस पोजीशन पे रखेंगे यहाँ पे, एंड इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज how much is 34.8 and the image distance is 30.7. Okay, 30.7 and this is 34.8. So object distance is 34.8 and this is 30.7. तो इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, इसमें 0.2 ऐड करना है, सो दिस इज 35 सेंटीमीटर्स एंड इमेज डिस्टेंस बनेगी, इसमें 1 माइनस करना है तो ये बनेगा 29.7 सेंटीमीटर्स. तो अब इसको भी फ्लिप करेंगे हम, दिस इज ये बनेगा 30.7, 34.8 एंड ये बनेगा 29.7, दिस इज 35. ओके, तो ये हमारे पास 6 रीडिंग्स आए. चाहे तो हम और भी बहुत सारे कर सकते हैं. सो ये हमने निकाला हुआ है 1/u और v और फिर 1/u 1/v. ओके, इसमें थोड़ा एरर होगा क्योंकि ये मैंने राउंड ऑफ किए हैं, तो एनी हाउ लीव इट एट दैट. हम यही देखेंगे बिकॉज ग्राफिकली हमें देखना था हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ. सो इसका ग्राफ बनाएंगे, करेक्टेड u वर्सेस करेक्टेड v. तो यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर पे बनाया हुआ. सो आई प्लॉटेड यहाँ से u एंड दिस इज v. ओके, सो हमें जो सेट ऑफ रीडिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हमें मिले वो कुछ ऐसे मिले, ये यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, कुछ ओवरलैप कर रहे हैं, तो वी जस्ट ड्रॉ अ स्मूथ हाइपरबोलिक कर्व थ्रू इट. ठीक है, देन 45 डिग्रीज पे लाइन डाली यहाँ पे. So this is at 45 degrees. ग्राफ पेपर के एक स्क्वायर के एक कोने से दूसरे कोने में जो लाइन डालोगे वो 45 डिग्रीज पे होगी और ये इंटरसेप्ट कर रही है इस पॉइंट पे. तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, सो दिस इंटरसेप्ट्स एट, दिस इज 30 और 8 डिविजन्स यहाँ के, क्योंकि ये मैंने 4 का लिया है, 4 डिविजन्स हुए फिर 1, तो 31 4, ये 8 आएगा 32. सो दिस इज ऑल्सो 32 हेयर.
So 32 divided by 2, that's about 16 centimeters. That's 16 centimeters. 32 by 2, 16 centimeters. So the focal length जो हमारी lens की निकली, that is 16 centimeters. Okay. Of course, graphically there is some error. वो तो हमें पता है क्यों होगा. This is your experiment number 10. ठीक है. Done on the 3rd November 2020. That's today.